Hello dear learners of class 8. Today we are going to start a new chapter of your book Sciwise. The chapter number is 4 and the name of the chapter is Metals and Non-Metals. So in this chapter we will cover following topics like physical properties of metal and non-metal, chemical properties of metal and non-metal, displacement reaction, what are noble metals, uses of metals and non-metals, and corrosion of matter, and more other topics. So the very first thing, if you have not solved your book exercise yet, kindly do watch the exercise video which is already created and posted on the channel. And if you have watched, then well and good, and if you have not watched, then kindly do watch it. So coming to the introduction of this chapter. So here I am going to explain detail about this chapter and we will discuss this chapter thoroughly. So dear learners, you people know that we have different kind of substance that are present around us. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे substance present है and we categorize those subject into those substance or those matter into two, that is the natural substance and the man-made सब्सटेंस. यानी कि दो कैटेगरीज में, पहली है आपकी नेचुरल, दूसरी है ह्यूमन मेड. तो नेचुरल सब्सटेंस क्या है? इट इज कोल, पेट्रोलियम, वाटर, दीज ऑल आर दी नेचुरल सब्सटेंस. ह्यूमन मेड सब्सटेंस आर चेयर, टेबल, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी एंड सो ऑन. सो natural substance means here I am showing you a flow chart. Kindly do watch it. So as we all know that all the thing around us is matter, and we classify matter into two, that is, one is the pure substance and the other is the mixture. ठीक है? A pure substance is also subclassified into the elements and compound. So elements is, the element is made up of one type of atom, compound is made up of more than one type of atom, and mixture is also classified into two, that is the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture, right? Then after, the compound is also classified, homogeneous mixture is also classified. So but according to your class level, 8th class, according to 8th class, you all know that matter, what is the matter? Anything that occupies space and have mass is matter, right? And each and everything is categorized as the matter. So then matter is classified into two, that is the pure substance and the mixture. Pure substance is divided into the elements and the compounds. Mixture is divided into the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. This is clear to you all. Now we are going to proceed and study in detail about this. So now back to the book. As I explained that natural substance is again categorized into the pure substance and the mixture. So elements और जो compounds हैं वो सब किसके अंदर आने वाले हैं? आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर. ठीक है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किसके अंदर आएंगे? प्योर सब्सटेंस के. और जो मिक्सचर है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर क्या होगा? इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ different substances. Then after we'll talk about the elements. What are the elements? So elements are made up of only one type of atom. एक ही टाइप के atom का बना हुआ होता है कौन? Element. What? Element. So it cannot be split up by physical and chemical method, and we cannot break that or we cannot split it by the physical or the chemical method. Now elements are classified into the metals, non-metals and metalloids depending on their physical and the chemical properties.
So coming to the main point of the chapter, we have categorized elements into three categories, that is the metals, the non-metals and the metalloids. So this is what we are going to study in the entire chapter, which is your chapter number 4. It is all about the metal, non-metal and the metalloids. They are different on the basis of their physical and chemical properties. Okay. Now coming to the main topic, that is the metal. So metals are like iron, copper, zinc, gold, silver, sodium, aluminium, mercury, magnesium. These all are the examples. क्या हैं ये सारे examples हैं किसके? metal के. Then metals, what are the qualities? They are hard, they are shiny, they are good conductor of heat and electricity. So these are the properties of the metal. What is the properties? That metal is hard, shiny, good conductor of electricity and heat. And on the basis of ability of gaining and losing electrons, metal can also be defined as element which mostly from the positive ion. The word here, IMP word, is the positive ion. Ions means an atom or a molecule that carries electric charge. So positive ion mean it have the positive electric charge. Clear? So these charges they obtain by losing or donating the electrons. Clear this much? Now how does this metal occur? So here we are going to study the occurrence of the metal. So you all know that metals occur mostly in the earth crust. It means metals are there in the abundance in the earth crust. Most of the metal are quite reactive. कैसे होते हैं? ज़्यादातर metal reactive होते हैं. Hence they are not found in the free state. Metals कैसे होंगे? Highly reactive होंगे. That is why it is not found in the free state. Either they combined with the mineral or something else. So they occur in the combined state in the nature as the mineral. ये किस स्टेट में होते हैं? They are in the combined state, और combined state में है इसलिए इनको minerals बोलेंगे. ठीक है? Minerals are defined. Now this is the important definition. Mineral are defined as solid, inorganic, naturally occurring substance with definite chemical formula. इनका एक क्या होता है? डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है. ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है और सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. स्टूडेंट्स, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो चैप्टर है ये आपका बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है. ठीक है? अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आगे चल के आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होगी. इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए. देन एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबेंडेंट मेटल है अर्थ की क्रस्ट पे, और फॉलोड बाय आयरन. यानी कि एल्यूमिनियम के बाद आयरन भी मोस्ट अबेंडेंट यानी कि ज़्यादा मात्रा में अर्थ की क्रस्ट पे प्रेजेंट है. बट they are highly reactive. So these metal combined with the other elements such as oxygen, sulfur, chlorine. क्योंकि ये metals कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा reactive हैं, highly reactive हैं, इसलिए combine हो जाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ, और इनके साथ combine होके they form their oxides, sulfides and chlorides. किस स्टेट में आएंगे ये? अपने ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और क्लोराइड की स्टेट्स में आएंगे. देन मेटल जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल से हमारे खुद के बेनिफिशियल यूजेस के लिए या प्रॉफिटेबल यूजेस के लिए. देन द रॉक्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर प्रॉफिटेबल यूज इज कॉल्ड दी ओर. ऐसे रॉक्स जिससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? ओर. तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ओर. ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. Now some example of ores is also given, that is ores are hematite and bauxite,
द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज ओर्स, इन ओर से जैसे हेमेटाइट है तो उससे आप आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बॉक्साइट है तो उससे आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो साइंस, ऐसा साइंस जो डील करता है इन सभी चीज़ों के एक्सट्रैक्शन से, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज मेटलर्जी। अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं कि ऐसा साइंस जो डील करता है विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर इज नोन एज मेटलर्जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में। कई बार टीचर्स क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर्स में ये ऐड करते हैं व्हाट इज मेटलर्जी। और मैं आपको बता दूं, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर चैप्टर इस पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो। मेटल विच आर लेस रिएक्टिव एंड अनरिएक्टिव आर फाउंड इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। जो मेटल्स जो कि कम रिएक्टिव हैं या अनरिएक्टिव हैं वो किस स्टेट में मिलेंगे आपको? फ्री स्टेट में, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ये जो मेटल्स हैं ये होते हैं आपके नेटिव स्टेट में, और ऐसे मेटल्स को ही हम नोबल मेटल्स भी बोल सकते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके नोबल मेटल्स हैं। अब यहाँ एक बात जो बहुत अच्छी दी गई है वो ये है, गेट इट राइट में, ऑल द ओर्स आर मिनरल। सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं पर सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। तो मैं इस सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो एंजॉय किया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ ही हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, metal can be defined as the element which form negative ion। कैसे आयन बनाते हैं ये? नेगेटिव आयन, by gaining और accepting, यानी कि ये आयंस को लेते हैं इसलिए ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं, है ना, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की जो ऑकरेंस है वो कैसे होगी? फ्री स्टेट में भी होती है और कंबाइंड स्टेट में भी होती है। अब जैसे फ्री स्टेट है तो वो कार्बन है, कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कंबाइंड स्टेट में नॉन मेटल। अब कुछ एग्जांपल्स जो नॉन मेटल्स के हैं वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर। ये एग्जांपल किसके हो गए? आपके नॉन मेटल्स। अब हम डिटेल में एक एक नॉन मेटल को अच्छे से पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में H सिंबल से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 1। इट बर्न इन द एयर और रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये क्या होता है? एयर में बर्न भी हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जिसको हम H2O बोलेंगे। देन कंबाइन फॉर्म विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म है किसका? ऑक्सीजन और वाटर का। अब जो हाइड्रोजन है ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में भी मिलता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट नॉन मेटल पे जो कि है नाइट्रोजन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78% ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन आवर एटमॉस्फेयर। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N। पीरियोडिक टेबल अगर आपने कभी देखा होगा तो N सिंबल जो है वो नाइट्रोजन का है, और ये जो है कंबाइंड फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म में भी होता है, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइल्स। ये जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है आपने पढ़ा होगा उसमें कि नाइट्रेट्स फॉर्म होते हैं, तो ये कंबाइंड स्टेट में वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। देन इसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत अबेंडेंट है, इसी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O सिंबल से।
इट ऑकर इन द फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ये ऑक्सीजन जो है ये फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में होता है। 21% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट द ऑक्सीजन। देन आफ्टर कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है अर्थ की क्रस्ट पे और फॉर्म करता है अपने ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स। क्या क्या फॉर्म करेगा ये? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल सी। पीरियोडिक टेबल में कार्बन को सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ये अपनी नेटिव स्टेट में मिलता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ये जो है ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। क्या है ये? एलोट्रोप्स। तो फुलेरिन क्या है? इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन whose molecule consist of the carbon atom connected with the single and the double bond to form a mesh। इसका फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो अगर आप देखेंगे तो एक मेस के जैसा होता है। मेस यानी कि खिचड़ी जैसा स्ट्रक्चर। देन डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। इट In the combined state, it forms compounds such as carbon dioxide, carbonates and bicarbonates। तो अगर वो combined state में है कार्बन तो कैसे compounds form करेगा? What type of compound it will form? It will form carbon dioxide, carbonates, bicarbonates। और जितने भी living things हैं they are made up of the carbon compound। Then next, thus it play a key role in our life। And carbon plays a very important and major role in our life. Next non-metal is sulfur. Sulfur is represented by the symbol S in the periodic table. It exists both in the free state also and in the combined state also, like sulfides and sulfates in the combined state and in the free state as sulfur itself। Then coming to the next part of the chapter, that is the metalloids। अब metalloids क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अब कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हैं आपके मेटलॉइड। देन अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑब्जर्व एंड टच करके हम बता सकते हैं। जैसे कि फिजिकल स्टेट, तो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मर्क्यूरी और गैलेनियम मेटल है पर लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं। मर्क्यूरी एक मेटल है बट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल की वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब ये डिफरेंस है, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि मेटल कैसे थे, सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, अगर लेकिन हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये होते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स। वहीं अगर हम ब्रोमाइन की बात करें तो ये लिक्विड नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करते हैं तो ये गैसियस नॉन मेटल है। अब हम मेटल और नॉन मेटल की हार्डनेस पे बात करते हैं और स्ट्रेंथ। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपके हार्ड मेटल्स हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट मेटल हैं और ये नाइफ से इजीली कट हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं नॉन मेटल्स को, तो जेंटली या जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड जो है, जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑकरिंग ऑन दी अर्थ। देन सोनारिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है।
जब हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड आएगा। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए जितनी भी बेल्स हैं वो सब मेटल्स की बनाई जाती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे हिट होने पे। देन लस्टर, मेटल्स जो हैं वो शाइनी अपीयरेंस देते हैं। लस्टर का मतलब ही है शाइन, तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिससे मेटल शाइन करता है, उसी को हम लस्टर बोलते हैं। तो मेटल्स जो हैं जैसे ही उस पर लाइट फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को और शाइन करते हैं। वहीं नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होंगे, यानी कि वो कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं देंगे। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसलिए ये शाइन करते हैं और एक लस्टरस अपीयरेंस देते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। इट अपीयर ग्रेश ब्लू बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन विच हैज क्रिएटेड कोट ऑन इट्स सरफेस। पर वो हमको कैसा दिखता है? ग्रीनिश ब्लू दिखता है। क्यों ग्रीनिश ब्लू दिखता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है। जो कॉपर है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या किया है? रिएक्ट किया है। अब वो जब रिएक्ट कर रहा था तब वहां पर उसके सरफेस पर एक कैसी कोटिंग बन गई? ग्रीनिश ब्लू कोटिंग बन गई, इसलिए वो हमको ग्रीनिश ब्लू दिखता है। अब मेलेबिलिटी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम मेटल को बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, जैसे कि एल्यूमिनियम को अगर हम बीट करेंगे तो एल्यूमिनियम फॉयल बन जाएगा, जिससे हम रोज लंच पैक करके ले जाते हैं अपना। कुछ प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, इनको डिफरेंट शेप्स देते हैं ताकि उससे ज्वेलरी बन सके। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बीट करके शीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। इसी के साथ हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर, इनको यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिक वायर। मेटल्स विच आर डक्टाइल एंड मैंडेबल आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो कि डक्टाइल होते हैं, मैंडेबल होते हैं, वो सारे कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग मेटल्स होंगे। लेकिन कुछ मेटल्स जो कि डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है, और मैंडेबल नहीं होते हैं, जैसे कि होते हैं कुछ मेटल्स, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। देन नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन डक्टाइल होंगे। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं करंट या हीट को पास होने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसीलिए जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और यही रीज़न है कि जो मेटालिक पैन है वो जल्दी हीट हो जाता है ना, हॉट ऑन हीटिंग। इफ द पैन डज नॉट हैव wooden or plastic handle, it would not be able, so you would not be able to hold the pan. Why? Because metal is the good conductor of electricity, and if it does not have the plastic or the wooden handle, you won't be able to handle it or hold it. So why it is so? Because the plastic and the wood is the non-conductor or the insulators. That is why we put on the plastic or the wooden handles on the pen. So metals are the good conductor of electricity, such as the screwdriver we use for testing the electric circuit is made up of the metal, and that is why the handles of the screwdrivers are made of wood or plastic, which are the poor conductor of electricity and heat. Hence the person does not get, इसीलिए किसी person को शॉक नहीं लगता है जब वो screwdriver को use करता है। Then after comes the melting point. So melting points is generally high in the metals, and boiling point is also high in the metals, but sodium and potassium have the low melting and the boiling point. This is the exception. Then non-metals have comparatively low melting point and the boiling point, but diamond is the exception, that diamond has the high melting point. This is the point to remember, and you can mark it as the important point also. Density. Metal have
high density, they are heavy. Only sodium and potassium have low density. Here also the exception is there, that sodium and potassium have low density, whereas the non-metals have low density, but non-metals are the lighter substance. Then specific gravity, the ratio of the density of the substance which represent the density of the water is called the specific gravity. This is also the important point, it can be asked. Then density of the water is taken as the standard density किसको लिया जाता है? Density of the water. Then most metal have high specific gravity. अब यहाँ पे कुछ मेटल की दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.8, गोल्ड की है 19.3, कोबाल्ट की है 8.7, कॉपर की है 8.9, सिल्वर की है 10.4, lead की है 11.33. So here we have end up with the part 1 of this chapter explanation. In part 2 we will be continuing with the chemical properties of the metals. Already chapter number 1, 2 and 3, the explanation video and the exercise video is uploaded. If you have not watched yet, kindly do watch it. Thank you dear learners, and stay connected for part 2 video of this chapter, which is metal and non-metal. Thank you.